रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह Observe 155 birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, also known as M.K. Gandhi. St. Xavier's High School, Harni, gave special tribute to our Bapuji, the father of our nation, on the occasion of 2nd October. So, I wholeheartedly welcome you all and wish you all a very happy Gandhi Jayanti. According to Xavier tradition, I would like to call NCC cadets to welcome our chief guest. अतिथि सर्वोपरि। I would like to call Miss Aruna Singh from Standard 11 to explain the bio. A galaxy of heroes. Among them, the man whom I admire, love, and adore most is our Mahatma Gandhi. Good morning, respected chief guests, dignitaries, principal sir, teachers, and my dear friends. I, Aruna Singh Kanwar, wish you a very happy Gandhi Jayanti. Gandhiji was not a religious preacher, but he was a man above all pretension and littleness. The pretty delicious and prejudices that afflict the ordinary, polite in manners and yet a lion in spirit, was born at Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869. After passing as a lawyer at Bombay High Court, he went to South Africa, and this visit was an important turning point in his life. Humiliating indignities, he devised a technique of non-violence to fight for their rights. This was the time when he wrote his most famous book, Hind Swaraj. In 1915, he returned to India, and in next few years, he became a political leader whose spirit and integrity could not be resisted by British government. To the unarmed people of India, he brought the weapon of non-violence. After Jallianwala Bagh massacre, he started non-cooperation movement in 1921, and in 1930, he started civil disobedience movement by breaking the salt law at Dandi. During the Second World War in 1939, the British government offered the Congress fresh proposal of self-determination on condition that Indian leaders would help them in their war efforts. Gandhiji advised Congress not to accept the offer. Where Mahatma Gandhi is the Prashad Guru. Now, I would like to call Principal Sir to address the gathering. Guest of today's program, Mr. Parvesh Bekra. Sir is Joint Collector of Bilaspur. It's a very proud moment for all of us that Sir has found some time from his busy schedule and to be present among all our children. So I extend a hearty welcome to Sir, and I request all my students and staff members to please give a huge round of today as a non-violence day. It's 2nd October and birthday of our beloved Bapuji. He is the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi. And just now, Aruna has wonderfully given the message and by telling the biography of Mahatma Gandhi. There are so many values which we can learn from his life. Some of the values I would like to put some light on that. One is strong determination. That helps everyone, even it's very absolute. It is very important for everyone's life, even in today,
whether we are a student, or whether we are a teacher, or whether we are in any profession, in any role, it's important. Strong willpower. So initially, when this independence movement, the fight against slavery started in our country, initially people were not that much united with each other. Different people have their different opinions, perception about freedom, and their way of fighting against the slavery, it was a different. Today we are remembering him, and he was given a title as the father of the nation. The one reason was behind that he united the people of our country. And for that, due to his strong willpower and determination, he kept on walking, and gradually the people started joining him, and then it was a big that unity in our country, and that was the reason that the British people had to quit our nation, and today we are living in the free nation. That you should accept it. If you accept it, your teachers, your parents, everyone in the society will support you. It happens, and gradually you will get a success. As Gandhiji got a success. Due to these values, he got a success. That's the second thing. One more thing that I remember that's very, very important. As it, I again quote his that one boy, Yadav. Be the change you want to see in this world. That was one of the very, very beautiful thought it has been given to the world. It's not, Mahatma Gandhi is not, one thing more you remember, Mahatma Gandhi is not the person who is being appreciated and welcomed and remembered in India. He's a world leader now. This summer only I was in LA. LA, there is Madame Tussauds Museum is there. It's a wax museum. It is in different countries of the world, even in Mumbai and Delhi also it's there. So there were so many that statue of Mahatma Gandhi was also there. Apart from having so many other monuments in the different parts of the world. So why he got that name and fame? Due to his values, and he wanted, I was coming to the quotation only, be the change you want to see in this world. If suppose you want something to happen in this world, as everyone like cleanliness, he has given a wonderful message about this Swachhta also, and we celebrate this day as a Swachh Bharat Day. I want neat and clean. I want a railway station very beautiful, very neat and clean. I want classroom should be neat and clean. And bhaiyas, they will walk on the roads and clean, and then it will happen. So that is it. Be the change you want to see in this world. If suppose after eating something, I am throwing the garbage here and there, how I can make this school campus neat and clean? And if we are on the railway station using it properly in the dustbin, we are to dispose of at the dustbin form. And then I will complain, no, this railway station is not neat and clean. Our country is not doing something. Our politicians are corrupt, and that's why this railway station, the officer of the railways, they are very bad, and that's why railway station is not neat and clean. And who is responsible? Either me or Ramsar or Shesh, that Umesh Yadav, or this girl who was giving this speech. We are responsible who has thrown the garbage. If any railway official came and he put we go to the washroom should be neat and clean. At the railway station or at the public platform, every person, I think, I remember, even in the railway, in the train also, the first thing, the person, what he does, क्या करते हैं सबसे पहले? उसका दरवाजा खोलते हैं टॉयलेट का, झांकते हैं, साफ है कि नहीं, वापस आ जाते हैं, ढूंढते हैं कि where is the clean washroom, and who has made it dirty? Using the facility, he did not take care, he did not even think to flush it properly. He did not even dispose, flush was not used, now somebody else will come. Why I should worry about that? If we will have this type of mindset, how we will keep our nation, how we will keep our railway station, how we will keep our school neat and clean. Now here one example, here in our school also, you people, what do? You eat some snacks there? Sometimes it's a biscuit, sometimes it's a... How many of you the garbage bag? How many of you? Raise your hand. जो खाना पूछ रहा हूँ बच्चे दोबारा से, कोई भी खाना खाने के बाद आपको कोई स्कूल में मिलता है, बिस्किट मिलता है, कि करते क्या है? हम चाहते हैं कि साफ सुथरी रहे चीजें सारी, स्कूल साफ सुथरा हो, कमरा भी साफ हो, दीदी आए, भैया आए, साफ करें, मेरा वॉशरूम भी साफ हो, लेकिन उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट.
Now, I would like to call Miss Khushi Sai for presenting her song. वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। I would like to present a poem in Hindi. राष्ट्रपिता कहलाते आप। राष्ट्रपिता कहलाते आप, हम सब करते आपको प्यार। 2 अक्टूबर को पोरबंदर में जन्म लिया। कभी भारत देश को धन्य किया। सीधा सादा वेश आपका, कभी नहीं अभिमान किया। खादी की धोती पहने बापू, सदा जीवन का विचार दिया। सत्य अहिंसा के द्वारा भारत को अंग्रेजों से आजाद किया। राष्ट्रपिता कहलाते आप, हम सब करते आपको प्यार। Wishing you one and all a happy Gandhi Jayanti. Thank you. Now I would like to call Miss Mansi Kawat for an English poem. Now I would like to present an English poem on the occasion of Gandhi Jayanti. A great person of peace, who to all wars called a peace, and who prevented bloodshed, and who India to freedom led. A lawyer who was in Africa, and who racial discrimination saw. He solved the problem there, and then the Indian problems laid bare. He fought using non-violence. In senseless people, he put sense. He led India to greatness, and India thus did bless. He pushed the British out of our land. To the ordinary people, he lent a hand. A greater person never did India to this earth. To a greater person never did India to give birth. A great solver of problems he was. He was never at a loss to give an answer to problematic questions. He was the only one say to no guns. Thank you to all and wishing you a happy Gandhi Jayanti. Thank you, Mansi. Now I would like to call Priyanshi Daheria for learning lessons from Bapuji quotes. To present over here. Now, I would like to present some famous quotes of Mahatma Gandhi ji. First, the future depends on what you do in present. The best policy is right action. It's easy to stand in crowd, but it takes courage to stand alone. Our greatest ability as a human to not change the world, but to change ourselves. Thank you. Have a peaceful day. Mahatma Gandhi always spoke about cleanliness is next to godliness. Now our hostel students are ready to perform a drama on Swachh Bharat Abhiyan. हमारा सपना है स्वच्छ भारत के निर्माण में हर एक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज हमारी पाठशाला में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हमारे छात्रगण। स्वच्छता पर सब में जागृति लाना हमारा मूल उद्देश्य है। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। भारत माँ अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में बंधित थी। भारत माँ की इस पीड़ा को महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अपने कठिन परिश्रम से दूर किया। नमस्ते भारत माँ, मुझसे आप क्या चाहती हो माँ? बेटा, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ बेटा, मुक्त करो बेटा। जरूर माँ, जरूर। हे मेरे भारतवासियों, जागो, जगाओ, देश के खातिर एक हो जाओ। हम सब मिलकर भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
आजादी दिए हमारे प्यारे बापूजी को हम बचा नहीं सके। महात्मा जी अब स्मारक बने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उतनी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की नदियाँ, तालाब, घर बाहर सब कुछ स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाए। सफाई ही सफलता का मंत्र है। जय हिंद, जय भारत। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी के इस सपने को हम सब मिलकर साकार करें। स्वच्छ भारत का निर्माण करें। इस गंदगी से मुक्त करो बेटा, मुक्त करो। गांधी जी ने सही ही कहा है, जो काम आप खुद कर सकें उसे दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। अब भारत में नया पर्व शुरू हुआ है, सब में जागृति आ रही है। 5 वर्ष में स्वच्छ भारत ही बापू का उपहार हमारा। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छ सुंदर देश घर संसार करना है। In Korea district Chhattisgarh, but had a deep faith of confidence and determination. He reached the prestigious post of government service, Joint Collector Batch 2017. He is educated from IIT Guwahati and has been working in Sukma district. With excellence, we are privileged to have him with us today. We extend our heartfelt gratitude to our honorable chief guest for gracing us with their presence today. We salute him for his dedicated service. Jai Hind. Corruption is everywhere, but how we can maintain the principle of honesty? जैसा हमको सबको पता है, ये जो लीगेसी है वो पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने का प्रयास करे ताकि ज़्यादा पारदर्शिता आए और सारे सर्विसेज को टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम करके छत्तीसगढ़ सरकार में लाया गया है। उसके लिए बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो टाइम बाउंड मैनर में उसमें समय फिक्स किया गया है और उसकी समय समय पर राज्य स्तर से और हमारे जिले स्तर से भी समीक्षा कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाती है। तो उस माध्यम से काफ़ी हद तक करप्शन को कंट्रोल किया गया। सुकमा जिले में लगभग 1.5 साल काम किया है। उससे पहले मैं बलरामपुर जिले में पोस्टेड था, जो
8-9 साल पहले वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, पर अब वहाँ वो परिस्थिति बदल गई थी क्योंकि उतना रिमोट एरिया नहीं था, सड़कों का विकास हुआ, बिजली पानी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वहाँ तक पहुँची। और सुकमा में जब मैं गया तो वहाँ देखा कि काफ़ी घोर जंगल है और इतना दूरस्थ इलाका है कि शासन की सर्विसेज पहुँच नहीं पा रही हैं। तो वहाँ लोकल स्तर पर कई प्रयास किए गए, जैसे लोगों को ज़रूरत होती थी कि राशन लेने के लिए बहुत दूर जाना होता है, तो उसके लिए राशन पहुँचाने के लिए बेसिक चीज़ क्या होंगी कि हमारी राशन की गाड़ियाँ गांव तक पहुँच जाएं, तो उनके लिए रोड बनाना होगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ होती थी रोड बनाने की। रोड बनाने के लिए एक समस्या ये आती थी कि वहाँ जो बन जाएंगे तो फोर्सेस बहुत जल्दी पहुँच सकेंगी या उनको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम करते थे। लेकिन सिक्योरिटी की हेल्प की वजह से ये सब भी काम वहाँ कराया गया और आगामी काफ़ी जल्दी समय में वो वहाँ पे वो समस्या भी दूर कर ली जाएगी। और Sir, my next question is like, what डे टू डे चैलेंजेस, तो बिहेवियर है वो हमको कैसे चेंज करना है। जो पर्सनल लेवल की बात थी कि कैसे गांधी जी की कोट था कि हम खुद में वो बदलाव लाएं जो हम देखना चाहते हैं। तो जो चैलेंजेस हैं हम खुद में बदलाव ला करके उसको चैलेंज को सोसाइटी लेवल पे दूर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं अभी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ जो आगामी समय में लगती है वो है एक साइबर अटैक जो आजकल होता है या ऑनलाइन माध्यम से लोगों को जो ठगी किया जाता है। अभी तो आप छोटे हैं, आपके पास फाइनेंशियल कुछ ऐसा होगा नहीं, बट आपको इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि किसी भी तरह की जैसे OTP की मांग होती है। एक जमताड़ा सीरीज आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी अगर, तो उसमें माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास किया गया था कि कैसे लोगों को ठग किया जाता है, नए नए तरीकों से लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे वसूले जाते हैं। तो उससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। आगामी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो जितनी सुविधाएं ऑनलाइन या AI हमको देगा उतनी ज़्यादा थ्रेट्स भी उससे हमको प्राप्त होंगे। क्या बताएंगे इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल स्कूल है, तो टीचर्स भी इसमें बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहें कि किन वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, या जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहाँ लिमिटेड आप अपने करीबी दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए कर सकते हैं। रैंडम लोगों से बातचीत करने से बचना चाहिए। उसी से माध्यम से ये सब जो खतरे हैं या किसी से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, फेसबुक में धार्मिक उन्माद फैल गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आजकल जो जैसे छोटे छोटे रील्स आ गए हैं, इससे हमको समझने की जरूरत है कि 5-10 सेकंड 15 सेकंड के रील्स होते हैं, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो ये समय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समय एक बार निकल जाता है तो फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो सबसे अच्छा बेहतर तरीका है कि आप अभी अर्ली स्टेज में मोबाइल से बचें। कम से कम जब तक आपकी बेसिक लर्निंग है, जब तक आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 12 तक बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपके टीचर सक्षम होते हैं आपको 12 तक की नॉलेज देने के लिए, तब तक आप बेसिक नॉलेज ही लें। इसके बाद फिर आगे हायर स्टडीज़ के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करके और आज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। From incalculating our brain memory. AI की वजह से बहुत चेंजेस भी उतने ही आएंगे, उतने ही थ्रेट्स भी आएंगे। और एक चैलेंज जैसे आपने बोला कि आर्टिफिशियल सारी चीज हमको कैलकुलेट करके अगर मिल जाएंगी तो हमारा ब्रेन क्या फंक्शन करेगा, तो उन चीजों को भी समझने की जरूरत है। आप जैसे कैलकुलेटर जैसे आया तो बेसिक जोड़ घटाव भी होता है, हम कैलकुलेटर से आजकल कर लेते हैं। पहले वो सुविधा नहीं थी तो लोग मेंटली वो करके, मतलब उस समय उनका दिमाग और साफ होता था। धीरे धीरे जैसे हमारे पास सुविधाएं बनते हैं, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जितने छात्र इसके लिए तैयारी करते हैं उसके अनुपात में बहुत ही कम छात्र जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं। परंतु हर एक का एक स्वप्न होता है। हर बच्चा छोटे आयु से बोलता है मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। आप तो खुद ही इस जो है पूरी चक्की से पीस के आगे बढ़ इस पद तक पहुँचे हैं। आपका अनुभव आप यहाँ पे साझा करेंगे ताकि हमारे छात्र सीख सकें। वे काफ़ी बच्चे जो है इस बारे में उत्सुकता रखते हैं। काफ़ी बच्चों का जो है ये एम है। मैं चाहूँगा आप अपनी तरफ से इन्हें कुछ दिशा निर्देश दीजिए। अपनी पर्सनल जर्नी से बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा टारगेट था कि मैं UPSC क्वालिफाई करके IAS क्वालिफाई करूं, बट वो मेरा प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया। मैं उसके बाद मेरा प्लान जो B था कि स्टेट सर्विस फाइट करके किसी तरह राष्ट्र की सेवा में लगना है करके, तो मेरा जो प्लान B काम कर गया।
तो आप लोग जैसे कुछ भी प्लान करते हैं, अगर आप कुछ एम कर रहे हैं कुछ बनने का, तो उसके लिए एक बैकअप भी आपको रखना चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में कुछ बैकअप भी रखें कि आपका प्लान ही अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो हार मानने की जरूरत नहीं, आप प्लान बी ट्राई करें। लेकिन उससे पहले आप अपने प्लान ए को 100% दें, आप पूरा प्रयास करें कि आप अपने जो मेन गोल था वहां तक आप पहुंच सकें। अगर नहीं हो पाते हैं तो हार मानने की जरूरत नहीं है, और भी रास्ते हैं, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। Man, what is the definition of a successful man? And in your life, what are the authors or a successful personality or a sportsmanship that motivates you? मेरे पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे तो प्रोफेशनल सक्सेस तो एक अलग ही, अगर आप खुश हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ खुश हैं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। अगर आप काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं, आप अपनी खुशी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो मेरी नज़र में व्यक्ति, मैं उसको थोड़ा कम आंकूंगा कि सक्सेस मानूंगा कि आप अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए आप इतने आगे निकल गए, इतने अलग निकल गए कि आपके अपने लोग ही आपके साथ नहीं हैं। तो इस बात की कोशिश कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करें और अपने चाहने वालों को भी अपने नजदीक रखें। कंपटीशन में हम लोग अपने एम्स को, गोल्स को अचीव कैसे करेंगे? कहते थे कि आपको जो भी पाना है उसके लिए आपको 100% अपना देना है। आप कंपटीशन की चिंता ना करें, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी 100% दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कई लोग सिर्फ दिखाने के लिए तैयारी करते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं तो मैं ये कर लूँ, लेकिन अंदर से वो 100% तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। आप जो भी करें आप अपने प्रति ईमानदार रहें, आप अपना 100% दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रुकावट आनी चाहिए। सिचुएशन और जैसा परिस्थिति डिमांड करती है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हम उस तरह का निर्णय लेते हैं। जा रहे हैं तो दोनों मतलब दोनों अपोजिट फील्ड्स हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि प्रशासनिक फील्ड में आए तो इसकी तैयारी आप करेंगे, बट बेसिक एक आपका वो एमबीबीएस तो हो ही गया है ना। तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपने मेडिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाँ, हालांकि उसमें थोड़ा टच आप हो सकता है लूज कर जाए, बट अपने कलीग्स के साथ टच में रहेगा तो वो भी हो सकता है। तो क्योंकि जैसे कि अभी हो रहे हैं जो 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पीयर्स भी हैं जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो फ्यूचर में भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो क्योंकि आप जेई क्वालिफाइड हैं और आपने यूपी सीजीपीएससी भी क्वालिफाई किया है, तो सर आपकी जर्नी में ऐसे बहुत सारे टाइम्स भी आए होंगे जब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती होगी। माइट भी ऐसा भी हो सकता है इसके चक्कर में बैकलॉग्स वगैरह भी लग जाते होंगे। तो बैकलॉग्स एक ऐसी चीज़ है जो एक लूप होल में आपको डाल देता है, इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकती है। प्लस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको अपना बेस्ट, अपने पोटेंशियल में पहुंचने नहीं देते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे ये सब चीज़ से डील किए थे और एक फाइट बैक किया था? सर पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे बताऊंगा, मतलब ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद स्कूल लेवल पे तो सभी अच्छे रहते हैं, बट जैसे आप जैसे आईटी स्तर के कॉलेज पे आप जाते हैं तो वहाँ लगभग सारे स्कूल के टॉपर्स ही होते हैं, तो आप वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं टॉपर होऊंगा, तो वो थोड़ी सी बेईमानी होती है। तो उस स्तर पे मेरा परफॉर्मेंस उतना सही नहीं था, बट मैंने देखा कि कौन लोग अच्छा कर रहे हैं, और मेरे दोस्त कुछ थे जो पढ़ने में मुझसे भी बेहतर थे, मैंने उनकी तकनीकें सीखी, वो कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता चला गया। तो आपको अपने पीयर से देखना है, अपने कलीग से देखना है कि कौन बेहतर है और उनसे भी सीखना है, मतलब आपको सीखते रहना है कैसे आप लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। जब आप अपने, वो एक पीयर प्रेशर आता है जब आपको फील होता है कि इवन तो आपके फ्रेंड्स भी आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक टाइम में वो एक जेलिसी होती है, बट भले वो पॉजिटिव जेलिसी ही होती है, बट समटाइम्स यू फील कि आप लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हैं? उसके बारे में क्या कहूँ मैं, बट कंटिन्यूअस आप करते रहिए, शायद बेहतर हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पर्सनली ऐसा ले लेते हैं कि मेरे को इससे आगे निकलना है, तो वो एटीट्यूड शायद सही नहीं है। आप अपने आप से लड़ाई कीजिए कि आज मैं इस स्तर पे था, आज मैं 9 पे था, तो कल मेरे को 10 पे जाना है। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। कि मेरा भी एक एम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो सर आपने क्या डिसिप्लिन्स फॉलो किए हैं सर, प्लीज गिव। I didn't get your question. Discipline. What do you mean by discipline? चलिए 2% देना पड़ेगा, और किसी भी चीज की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है।
मतलब आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाया किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, आपने उसके बाद 15 मिनट या आधे घंटे का गैप रखा, तो आपको 15 मिनट का ही गैप लेना है। कई बार ऐसा होता है, आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया, मैंने वो रील वाली बात बताई थी कि आप 5 रील देखा, 10 रील देखा और कब वो आधा 1 घंटा बदल गया, वो समय फिर लॉस होता है। तो आपको टाइम टेबल को अपने को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको वो चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं, जैसे घर में शादी है या कोई फंक्शन है, तो उन चीजों को भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए 1.5 साल का जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सब चीजें, लेकिन आपका जो तैयारी का जो पीरियड है, जो आपका प्रिपरेशन का फेज है, एक बार निकल गया तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता। तो इस तरह से वो फॉलो करते हैं। कैसे किए? मैं 12th लेवल पे जो मेरा मैथ्स और बायो दोनों था, मैंने पीएमटी भी दिया था, उधर भी हुआ था, इंजीनियरिंग लाइन में भी हुआ था। तो फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद फिर जो सिलेबस की डिमांड होती है यूपीएससी के लिए, उसके हिसाब से अपन बुक्स पता किए, टीचर से सजेशन मिला, तो वो टाइम टेबल बना करके फिर अपन तैयारी करते हैं। मैं दिल्ली गया था। Thank you. Got any scholarship in your childhood? I didn't get any scholarship. In childhood, I wanted to be in the army actually, but I didn't realize I am right now. ड्राइवर्स देखते हैं तो जो प्लेन चलाते हैं वो पायलट होते हैं, और एयर होस्टेस जो उनके टेक केयर करते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, बेहतर सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि एयर में तो कोई और है नहीं। प्लेन के जो फ्लाइट अटेंडर रहता है वो एयर होस्टेस। So my question is, sir, you have to crack UPSC. So why did you do JEE? ओके, दिया जाता है 10th के बाद हमको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है और उसके बाद फिर हमको एक फील्ड डिसाइड करके उसमें आगे बढ़ना होता है। तो बट ह्यूमन माइंड इस ऐसा है कि आप किसी भी समय आपको ऐसा लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा सही नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके लिए आगे भी रास्ते खुले होते हैं। यूपीएससी क्योंकि बहुत ब्रॉड है और उसमें काफ़ी जो देश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें काफ़ी तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आर्ट से जाएंगे, मेडिकल बैकग्राउंड से भी आप जा करके हेल्प कर सकते हैं। आपके पास क्योंकि मेडिकल फील्ड की नॉलेज है तो आप हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सकते हैं बाकी चीज़ों में, और जैसे इंजीनियरिंग में नॉलेज है तो बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें बेहतर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, तो वो आप हेल्प कर सकते हैं। मतलब यूपीएससी या आईएएस जो सर्विस है वो सभी तरह के फील्ड्स को अलाउ करती है कि आपने जो नॉलेज गेन किया है उसका उपयोग आप प्रशासन में किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। I am best of myself and I have all the sufficient requirement which I can achieve each and everything. From this, as being a advisor, I want to thank you for giving me the golden opportunity to speak in front of you. वैसे स्वच्छ भारत ड्राइव के लिए बूट सब लेके आओ, झाड़ू लेके आओ, तो उसी स्वच्छ भारत ड्राइव ऑफिसर सिंबॉलिकली चालू करना है। स्टैंड अप ऑल। अतिथि देवो जयंती के अवसर पे हम गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता की ओर ईमानदारी से हम सभी बच्चे यहाँ से लेके स्कूल के उस असेंबली ग्राउंड तक सभी लाइन से चलेंगे और हमारे हाथ में भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हम सैनिक
निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे।